we have two vectors, vector A is equal to 5i plus 5j plus 5k and vector B is equal to minus I plus j minus 3k, and in this case we have to find the scalar product and the vector product of these two vectors. That means here you have to find vector A dot vector B and vector A cross vector B, vector A dot vector B and vector A cross vector B. So first of all we have to find the scalar product of these two vector, scalar product of these two vector, vector A dot vector B is equal to 5i plus 5j plus 5k dot minus vector I प्लस वेक्टर j माइनस 3 वेक्टर k. तो ये डॉट प्रोडक्ट हमको सॉल्व करना है. सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो इसमें सिंपली क्या करना होता है, आई के टर्म को मल्टीप्लाई करो, जे के टर्म को मल्टीप्लाई करो और के टर्म को मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ पर i के सामने 5 है, यहाँ पर i के सामने -1 है, सो -5 इंटू -1. जे के सामने 5 है, जे के सामने 1 है, 5 इंटू 1 5 हो गया. यहाँ पर के सामने 5 है और के सामने -3 है, तो 5 3 ज़ा 15, लेकिन यहाँ पर -15 आ जाएगा. नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू +5 -5 कैंसिल होगा, आपको -15 यूनिट आंसर मिल जाएगा. सो the scalar product or we can say dot product of these two vector is equal to -15 unit. Now in the similar manner we have to find the vector product of these two vector by using the determinant method. यहाँ पर हम लोग determinant लेंगे. vector product, here vector A cross vector B is equal to vector I, vector j, vector k. Here we have to write 5. That means ax, ay, az. वहाँ पर -1, 1, -3, मतलब bx, by, bz. So -1, then 1 and -3. So vector I, वेक्टर आई अगर लिया जाए, इसको कंसीडर नहीं करना, आपके पास बचा है 5, 1, -3. फिर इसको हटा दो यहाँ से, आपके पास बचा हुआ है -j लिखने के बाद 5, -1, -3. प्लस के लिखेंगे तो आपके पास बचा है 5, -1, 1. 5, -1, 1. ठीक है. देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेक्टर आई 5 इंटू -3 -15, again minus 5 into 1 5 minus j 5 into 5 into 5 1 and -3. ठीक है. 5 into -3 -15 minus 5 into -1 -5 plus k 5 into 1 5 minus 5 into -1 -5. Now vector A cross vector B is equal to -15 -5 -20 I
-15 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब -15 + 5 -10 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो +10j मिलेगा। इन दिस केस माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5 यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 10k। नाउ दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। -20i + 10j + 10k is the vector form. Here you have to find the magnitude, then take the mod of this vector a cross vector b. So write in square root sign, -20 square plus 10 square plus 10 square, and this is equal to square root of -20 square 400, 10 square 100, again 10 square 100, so you will get here square root of 600 unit is the magnitude of vector A cross vector B. So in this way we can find out the scalar product and the vector product of any two vectors. Thank you. So we have two vectors, vector P is equal to 2i minus 3j plus 4k, and vector Q is equal to 3i minus 4j plus 2k. These are the given vectors, and in this case we have to find scalar product and vector product of these two vectors. Scalar product, that means dot product, and vector product, that means cross product. तो हमें यहाँ पर ये दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और उसके बाद में वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. सो हाउ टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट? वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. Scalar product of vector p and vector q is vector p dot vector q is equal to, vector p is given 2i minus 3j plus 4k, dot product 3i minus 4j plus 2k. इस प्रकार से आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया और ये सेकंड वेक्टर हो गया. ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया. अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, तो i के सामने यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर i के सामने 3 दिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 3 6, i डॉट i 1 होता है. j के सामने -3 है, नॉट 3, -3. यहाँ पर j के सामने -4 है, तो -3 मल्टीप्लाई विथ -4, 4 3 12, यहाँ पर +12 हो गया. अगेन j डॉट j इज इक्वल टू 1. k के सामने 4 है, यहाँ पर k के सामने 2 है, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. अगेन k डॉट k इज इक्वल टू 1. सो 6 + 12 + 8. तो 6 + 12 + 8 इट इज़ द 26. यहाँ पर आप लोग लिखो यूनिट, क्योंकि रिजल्टेंट में कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा. तो यहाँ पर हम लोग UNIT लिख देंगे और इस आंसर को छोड़ देंगे. हो गया. 26 यूनिट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q. दिस इज द आंसर. आफ्टर कैलकुलेटिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, लेट अस फाइंड आउट द वेक्टर प्रोडक्ट. तो वेक्टर प्रोडक्ट किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम लोग डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे. वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट लेना है वेक्टर I, वेक्टर J और वेक्टर K. वेक्टर I 2, here -3 एंड here 4. मतलब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं Px, Py, Pz, Px, Py, Pz.
In the similar manner qx, qy, qz. So qx is 3, qx is 3, qy is -4 and qz is +2. तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना होगा, दिस इज। इसको डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं आता तो बस इस स्टेप को बढ़ा दो। आप लोग आई की बात करो, आई ले रहा हूँ, इसको छुपा दो। आपके पास में अभी है -3 and 4, -4 and 2, ये हो गया। जब आप यहाँ पर -j लिखोगे तो इसको छुपा दो। आपके पास में 2 4 3 2 ऐसा है, 2 4 3 2 ऐसा रहेगा। प्लस वेक्टर के लिख लो। तो वेक्टर के अगर लिखोगे तो आपके पास में क्या है, 2 -3 3 -4, 2 -3 and 3 -4. Now take the cross multiplication. Vector P cross vector Q is equal to vector I as it is लिखो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसा करेंगे, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 जा -6 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 4 जा 16। यहाँ पर देखो माइनस लिखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो 4 4 जा 16, माइनस के कारण -16 और यहाँ पर हम लोग माइनस लिखते ही है तो ये बाद में +16 हो जाएगा। देन -j, 2 2 जा 4 माइनस 4 3 जा 12 प्लस वेक्टर के 2 into -4 -8 अगेन माइनस 3 into -3 -9। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर I -6 प्लस 16 -j 4 -12 प्लस k -8 प्लस 9। देन वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू -6 प्लस 16, ये 10 हो जाएगा तो आपको 10i मिल गया, 10i मिल गया। 4 -12 इट इज -8, लेकिन इस माइनस के कारण यहाँ पर +8 हो जाएगा और आपको +8j मिलेगा। देन -8 प्लस 9 1, सो हियर यू विल गेट 10i प्लस 8j प्लस k। दिस इज द वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ओनली। आपको जो रिजल्टेंट मिला वो वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको मॉड लेना पड़ेगा, मॉड ऑफ वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर देन प्लस 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64 plus 1 square 1, and hence you will get here 165 unit is the answer of mod vector P cross vector Q। मतलब यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, √165 यूनिट।
So in the similar manner, we can find out the scalar product and vector product of the remaining problems. तो देखिए यहाँ पर इसको फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर से एक बार इसका डिस्कशन हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिया 2 - 3 4 2 - 3 4 q 3 - 4 2 दैट इज इक्वल। जब हम यहाँ पर i लिख रहे हैं -3 2 दैट मीन्स -3 4 और -4 2 ये आ गया। देन -j इसको छुपा दो तो बचेगा आपका पास 2 4 3 2 2 4 3 2 वेक्टर के इसको छुपा दो 2 - 3 3 - 4 ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वेक्टर एज इट इज रहेगा 3 2 जा -3 2 -6 ठीक है। अगेन -4 4 जा 16 लेकिन यहाँ पर माइनस होने के कारण -16 -j 2 2 जा 4 -4 3 जा 12 प्लस के 4 2 into -4 -8 again -3 into 3 -9. So in this case you will get I -6 plus 16 माइनस यहाँ पर वैसे ही रहेगा 4 - 12 एज इट इज रहेगा -8 माइनस प्लस 9 -6 plus 16 10i 4 - 12 is -8 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो प्लस 8j मिलेगा और यहाँ पर -8 plus 9 तो यहाँ पर 1k मिलेगा। Here you have to find the magnitude because this is the vector। आपको अगर मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो बस इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट लेना 10 स्क्वायर देन 8 स्क्वायर देन 1 स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 8 स्क्वायर 64 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 165 यूनिट इज द आंसर, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। थैंक यू।